student. Today we will start our chapter 9, Means of Communication. What is means of communication? Means of communication means the process of sending or receiving messages. Process of sending and receiving messages is called communication. We will communicate with sending and receiving messages. Today we will today we will discuss about postal communication and telephonic communication. So let's start our chapter 9. All of you open your page number 65. The process of sending or receiving messages is called communication. Different means by which we can communicate with people are called means of communication. डिफरेंस मीन्स अलग अलग वे में हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, उसको मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं. बातचीत करने के जो हमारे साधन होते हैं उसी को मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कहा जाता है. अर्ली मैन यूज साइंस, सिम्बल्स, सिग्नल्स, पिक्चर्स एक्सेट्रा. प्राचीन समय में किन किन चीज़ों का यूज़ किया जाता था कम्युनिकेशन के लिए? साइंस, सिग्नेचर का निशान, किसी को सिंबल बना के किसी सिग्नल के थ्रू, है ना, एंड पिक्चर्स के थ्रू ये कम्युनिकेट करते थे एक दूसरे से, टू कम्युनिकेट विद ईच अदर. बट दिस मेथड्स टुक ए वेरी लॉन्ग टाइम. और ये बहुत काफ़ी लंबे समय तक इस मेथड का यूज़ किया गया. टुडे देर आर मैनी फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, बट नाउ टुडे वी यूज़ फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, है ना. वी यूज़ different fastest means of communications. The advancement in the means of communication has made the exchange of message and information possible at the press of a button. एक बटन हम लोग प्रेस करते हैं और उसी से हमारी इंफॉर्मेशन सामने वाले के पास पहुंच जाती है और वहाँ की इंफॉर्मेशन हमारे पास पहुंच जाती है और हम लोग कम्युनिकेट एक दूसरे से कर सकते हैं. each other we can communicate. The modern means of communication have brought the people closer to each other and the world has become a small place now. इसलिए इतना फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन्वेंट हो चुके हैं कि पूरा वर्ल्ड एक दूसरे के काफ़ी करीब महसूस होता है कि हम आउट ऑफ रिलेशन, हमारे देश के बाहर भी हम किसी से बात करना चाहते हैं तो हम 1 सेकंड या 10 सेकंड या 5 सेकंड में हम उनके पास पहुंच सकते हैं. Let's read about the various means of communication. Now we will discuss about the various means of communication. Today we will discuss about the postal communication and telephonic communication. Firstly we will go to postal communication. It is the most popular method of communication. Postal communication is the most popular method of the communication. We write our messages on postcards, inland letter or plain papers. We will write our message. We can write our messages in postcards, inland letters, and plain papers. This plain paper is then put in a stamped envelope. एक एनवेलप में हम लोग उसको रखते हैं एंड स्टैम्प्ड एनवेलप मीन्स क्यों इस पर स्टैम्प पेस्ट करके उस एनवेलप के थ्रू हम लोग वो मैसेज या लेटर या जो भी हमें सेंड करना होता है किसी के लिए उसको उसके थ्रू हम लोग सेंड करते हैं. We write the address and pin code numbers on the letters very clearly, and we have to write addresses, proper address and pin code number of this area and of this person's address, so that the letters reach very easily and very clearly to this paper. All these things we get from the post office. And all of these things we get from the post office and we have to go through the post office. We can also send parcels from the one place to another. We have also sent parcels and now we can send parcels through the post office to. Telegrams were used to send short and urgent messages through telegraph. Telegraph के through telegram भी send किए जाते थे fast and urgent messages के लिए. And telegraphic communication which started in India in 1853. In 1853, in India, telegraphic communication started
but it has been discontinued since July 2013 और 1852 से स्टार्ट होके वो 2030 तक कंटिन्यू वो उसमें सब कम्युनिकेशन का यूज़ किया गया, बट इन 2013 इसको स्टॉप किया गया और आफ्टर 160 ईयर्स के बाद इनको इस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का यूज़ स्टॉप कर दिया गया. Nowadays we have private postal services called courier in towns and cities. Nowadays we have used courier services in town and cities. Speed post is used for faster delivery of mails. Speed post कैसे यूज किया जाता है? मेल्स और पार्सल्स फास्ट डिलीवरी और मेल्स के थ्रू स्पीड पोस्ट का यूज किया जाता है. When we want to send letters to people staying in other countries, we use aerograms. When we want to send the persons who stay in another countries, so then we use aerograms. In India, we use different letter boxes for dropping different mails. अलग अलग मेल्स के लिए अलग अलग बॉक्सेस इंडिया में बनाए गए हैं. रेड लेटर बॉक्सेस आर मेंट फॉर कलेक्शन ऑफ मेल्स विच आर नॉट लोकल. रेड बॉक्सेस में कैसे ईमेल्स होते हैं जो लोकल नहीं होते हैं. एंड ग्रीन लेटर बॉक्सेस आर मेंट फॉर कलेक्शन फॉर लोकल मेल्स. एंड ग्रीन लेटर बॉक्सेस में जो लोकल मेल्स होते हैं वो होते हैं. ब्लू बॉक्सेस आर मेंट फॉर मेल्स एड्रेसेस टू मेट्रो सिटीज. ब्लू बॉक्सेस में मेट्रो सिटीज के लिए ईमेल्स पड़े होते हैं, जैसे कि लाइक बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास एंड दिल्ली. 4 cities are our metro cities, है ना, you know ना. So these 4 cities for email is this 4 cities email for email is in blue boxes: Delhi, Kolkata and Chennai and Mumbai. Yellow boxes are meant for mails addressed to all state capitals, and all state capitals के लिए येलो बॉक्सेस का यूज किया जाता है. वन कैन ऑल्सो सेंड मैसेजेस थ्रू फैक्स. हम फैक्स के थ्रू भी मैसेजेस सेंड कर सकते हैं. वी कैन सेंड ए प्रिंटेड मैटर और पिक्चर्स थ्रू ए फैक्स मशीन. प्रिंटेड मैटर और पिक्चर्स हम फैक्स मशीन के थ्रू सेंड कर सकते हैं. जैसे कि हम आउट ऑफ सिटी चले गए, हमारा एडमिशन के लिए हम आउट ऑफ सिटी गए हैं और हमारी मार्कशीट बाय मिस्टेक हमारे घर पे छूट गई है और हमारे लिए उतना टाइम नहीं है कि हम घर पे आके उसको लेके जा सकें. तो हम क्या यूज़ करेंगे? फैक्स मशीन का यूज़ करेंगे, जिससे कि हमारी मार्कशीट की कॉपी उस फैक्स मशीन के थ्रू हम जिस सिटी में वहाँ पे हैं यहाँ से फैक्स मशीन के थ्रू वहाँ से फैक्स मशीन में वो पहुँच जाएगी. और इस तरह से फास्टेस्ट मीन्स टू कम्युनिकेशन जिसको कहते हैं, फैक्स यूज़ करके हम प्रिंटेड और पिक्चर भी एक दूसरे को सेंड कर सकते हैं. The exact copy of the document reaches the receiver instantly. Receiver के पास instantly वो exact copy पहुंच जाती है. Now we will come to our next topic, telephonic communication. To send a message immediately, one can use a telephone to talk to the concerned person. किसी person को personally message करने के लिए we can use a telephone to talk. Through telephones, we can directly talk to a person anywhere in the world. Today, it's a very easy and very popular means of communications. वर्ल्ड में किसी भी पर्सन से हम बहुत ही इजीली टॉक कर सकते हैं. यू कैन टॉक टू एनीवन इन इंडिया यूजिंग STD, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग. STD यूज़ करके अब तो मोबाइल की वजह से बहुत ही कम STD बूथ रहते हैं, बूथ मिलते हैं आपको. बट कुछ साल पहले, बिफोर 5 years और 5 or 6-7 years, वी हैव STD बूथ्स, है ना. जगह जगह पे हमें STD बूथ्स मिलते थे जहाँ से हम नेशनल लेवल पे या तो नेशनल लेवल पे हम लोग हर जगह बात कर सकते थे इंडिया में. STD facility and to anyone in another country using the ISD, international subscriber dialing, or
आउट ऑफ इंडिया बात करने के लिए हम ISD यूज करते थे और कर सकते हैं अभी भी. मोबाइल फोन्स आर और सेल्युलर फोन्स कॉल्ड स्मार्टफोन्स मेड कम्युनिकेशन इजियर. मोबाइल फोन और सेल्युलर फोन ने कम्युनिकेशन को बहुत ही इजी कर दिया है. वी कैन टॉक टू अ पर्सन एनीवेयर एंड एट एनी टाइम व्हाइल ट्रैवलिंग. वी कैन टॉक एनीवेयर एनी टाइम बाय ट्रैवलिंग. चाहे आप किसी भी सिचुएशन में कहीं भी हो तो आप किसी से भी टॉक कर सकते हो. Nowadays, mobile phones have several extra facilities like touch screen, digital camera, video, data storage facility, voice recording, internet, phone banking, FM radio, etc. So many apps in our phones, है ना. Nowadays, so many apps in our phones. बहुत सारी facilities एक ही चीज छोटे से इंस्ट्रूमेंट में हमारे पास रहती है. We can also chat with friends and send receive photographs on smartphones. स्मार्टफोन्स के थ्रू तुरंत बहुत ही इजीली चैट भी कर सकते हैं, बहुत ही इजीली फोटोग्राफ्स भी एक दूसरे का हम लोग रिसीव एंड सेंड कर सकते हैं. द आईफोन फंक्शंस एज ए कैमरा फोन, टेक्स्ट मैसेंजर, पोर्टेबल मीडिया प्लेयर एंड हैज ईमेल एंड वेब ब्राउजिंग फैसिलिटीज. इट ऑल्सो हैज एडवांस वीडियो रिकॉर्डिंग एंड प्लेइंग फैसिलिटीज. स्मार्टफोन ऐप्स क्या होते हैं देखिए. App or application is a computer program or price or software designed for a particular purpose that you can download onto a mobile phone or other mobile device. आप मोबाइल फोन पे आपको जो भी रिक्वायरमेंट है, आपको जो नीड है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं. अदर मोबाइल डिवाइस से भी डाउनलोड कर सकते हैं. एप्लीकेशन फॉर डेस्कटॉप और लैपटॉप कंप्यूटर आर sometimes called desktop applications while those of mobile device are called mobile apps. डेस्कटॉप कंप्यूटर पे उसको डेस्कटॉप एप्लीकेशन कहा जाता है, मोबाइल पे उसको मोबाइल डिवाइस मोबाइल एप्स कहा जाता है. When we open an application, it runs inside the operating system until we close it. जब हमें उसको यूज करना होता है तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम को ओपन करते हैं, एप्लीकेशन को ओपन करते हैं और उसको तब तक उसको यूज़ कर सकते हैं जब तक हमें उसकी नीड हो. जब तक हम उसको क्लोज नहीं कर सकते और क्लोज नहीं करेंगे तब तक हम उसको यूज़ कर सकते हैं. नाउ टुडेज आवर टॉपिक इज ओवर. वी विल कंटिन्यू विथ न्यू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन in next class. Thank you.